Hello, everyone. Well, today we are joining hands with millions around the world to raise awareness about a very important topic that is heart health. Yes, World Heart Day, celebrated on 29 September, serves as a reminder of the importance of keeping our hearts healthy. The theme of this year is Use Heart for Action, encouraging people to take steps to maintain and protect their heart health. Well, to discuss heart health and how we can stay healthy and all those tips and tricks, we have Shweta with us, who is the training lead at For Life India. Well, thank you for joining, Shweta. Over to you, Shweta. Thank you, Akansha. It's great to be a part of such an important conversation. Let's begin. Well, Shweta, let's start by talking about cardiovascular health challenges. So, can you explain what are they and how they affect different age groups and genders? Okay, of course. So, Akansha, when you look at cardiovascular diseases or heart cardiovascular health challenges, they are referred to as disorders of the heart and blood vessels. You can heart attacks and strokes are the most common. Now, while once it was seen that it mainly affects the older adults, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो young लोग भी equally affected हैं. Okay. Now, अगर आप कॉजेस देखेंगे तो पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि स्मोकिंग है, अगर आपकी डाइट बहुत खराब है, एंड इफ देयर इज लैक ऑफ एक्सरसाइज, दे आर पुटिंग इवन यंग पीपल एट रिस्क. But both men and women are affected. But women are more at risk after the menopause due to hormonal changes. तो जो भी hormonal changes होते हैं बॉडी में, that also affect your heart health. All right, so that's really eye opening that women को especially catch करता है after 45. So coming over on to that only, that what signs should people pay attention to in terms of heart health? क्या Yeah. हमें मतलब क्या हमें करना चाहिए, क्या साइंस हमें देखने चाहिए? ओके, तो सीवीडीज यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं ना, दे कैन समटाइम्स बी साइलेंट. बट अगर आप कॉमन साइंस देखोगे ना, दे विल इंक्लूड डिस्कम्फर्ट इन द चेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अगर आपकी हार्ट बीट इरेग्युलर है, डिजीनेस है मतलब चक्कर आ रहे हैं अगर बहुत दिन से, या फिर अनयूजुअल फटीग है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार क्यों इतनी थकावट हो रही है बॉडी में, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो. It's important to take these signs very, very seriously. In fact, also for the younger people population, it is recommended अगर आपको ऐसे कोई भी signs दिखते हैं, immediately contact your doctor. And it is very important to pay attention to, to them, because they can make a significant difference in maintaining long-term heart health. All right. So अब आपने साइंस हमें बता दी हैं. So could you please tell us what are some of the major risk factors for heart health challenges and how can we protect our hearts through diet and lifestyle changes? तो की रिस्क फैक्टर्स की जब हम बात करते हैं ना, तो स्मोकिंग इज अ वेरी बिग रीजन फॉर हार्ट हेल्थ. डब्ल्यूएचओ ने भी दे हैव सजेस्टेड दैट स्मोकिंग इज समथिंग विच लीड्स टू हार्ट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस. अनबैलेंस डाइट है, अगर आपकी टू मच ऑफ पैकेज प्रोसेस जंक फूड, टू मच ऑफ सोडियम रिच फूड्स, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड अगर आप खा रहे हो, तो उससे उससे भी आपके हार्ट पे इम्पैक्ट करता है. इसके अलावा अगर बहुत ही आराम वाली लाइफस्टाइल है, टू मच ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक. इसके अलावा अगर आप हेल्थ रिलेटेड बात करें, तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है, या आपके ब्लड शुगर लेवल्स एलिवेटेड रहते हैं, या आप ओबेस हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं. और प्रिवेंशन जो होता है स्टार्ट्स विद हार्ट हेल्दी चॉइसेस. तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर रिच फ्रूट्स जैसे कि फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, ये सब इंक्लूड करें डाइट में. तो ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फाइबर है, मिनरल्स है, वाइटामिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है. इसके अलावा कहा जाता है कि इनकॉर्पोरेट हेल्दी फैट्स. तो जब हम फैट्स की बात करते हैं तो फैट इज लाइक द विलेन इन अवर डाइट्स, बट इट इज नॉट लाइक दैट. सारे सेल्स जो भी बॉडी में है, सबको फैट की जरूरत है, राइट? तो अगर आप मतलब अनहेल्दी फैट्स खा रहे हो, तो आपके सेल्स कैसे हो जाते हैं, दे विल बिकम स्लगिश. और अगर आप हेल्दी फैट्स खा रहे हो तो आपके सेल्स भी हेल्दी होते हैं, राइट? सो फैट जो है, इट इज नॉट अ विलेन इन द डाइट. अगर आप हेल्दी फैट्स लेते हो जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, घी है मॉडरेशन में, एलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स जिसको हम अलसी कहते हैं, ये सब अगर आप इंक्लूड करते हैं डाइट में, तो इट इट इंक्लूड, यू आर इंक्लूडिंग हेल्दी फैट्स इन द डाइट.
नाउ इसके अलावा जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, पहले के जमाने में क्या होता था, वी वर यूजिंग द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। अभी हम लोग रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल इंडस्ट्री इज लाइक अ माफिया, जिसके कारण काफी ज्यादा हार्ट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज पीपल आर यूजिंग टू मच ऑफ रिफाइंड ऑयल। इसके अलावा जब आप कुछ तलते हैं, तो जो तला हुआ, तलने के बाद जो तेल बचता है, उसको भी अगर आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, दैट ऑल्सो रिलेटेड टू लीड्स टू हार्ट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस, बिकॉज उससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली यू आर टेकिंग बैड फैट इन द डाइट। बहुत एक्सटेंडेड टाइम तक इफ यू आर डूइंग दिस प्रैक्टिसेस, देन इट कैन इम्पैक्ट इट। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्ट इंटेक को मैनेज करना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, यू हैव टू टेक 1 टी स्पून सॉल्ट। अभी इंडियन डाइट में अगर हम देखें, वी आर ईटिंग टू मच ऑफ सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट से वाटर रिटेंशन भी होता है, एंड इट इज वेरी मच रिकमेंडेड लिमिटिंग सॉल्ट टू लेस देन 5 ग्राम्स, अबाउट 1 टी स्पून डेली, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क को, और ऊपर से जो टेबल सॉल्ट हम ऊपर से चीजों में डालते हैं, दैट इज इवन मोर बैड। Apart from this, avoid processed food and use natural seasoning. So WHO भी ये रिकमेंड करता है, यूज नेचुरल सीजनिंग, जैसे कि हर्ब्स हैं, लेमन फ्लेवर है, ये सब लेमन्स यूज कर सकते हो फ्लेवर के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, Got एक्सरसाइज, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, वेरी क्रूशियल फॉर हेल्दी हार्ट। एम फॉर 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी, ब्रिस्क वॉकिंग, और 75 मिनट्स ऑफ विगरस एक्टिविटी। अगर आप विगरस कर रहे हो तो 75 मिनट्स, और अगर आप नॉर्मल मॉडरेट एक्टिविटी करते हो तो 150 मिनट्स का पर वीक करना चाहिए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है, अगर आप जिम जाते हैं या योगा करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वाइस अ वीक अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करते हो, ओवरऑल हार्ट हेल्थ और मसल के लिए बहुत बेहतरीन है। मतलब ऐसा नहीं कि हम सबको ही बहुत अमेजिंग बॉडी बनानी है, लेकिन अगर आप इतना भी मेंटेन करके चलते हो, रियली गुड फॉर द हार्ट। दैट्स अमेजिंग कि आपने पूरा लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए, अपनी डाइट चेंजेस भी हमें जो करने चाहिए अपनी डाइट में वो भी बताए। श्वेता, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस है हार्ट हेल्थ को लेके। स्पेशली जो यंगर लोग हैं वो ये सोचते हैं कि उनको कोई ये हार्ट डिजीज नहीं हो सकता। एक्चुअली दे डोंट वरी अबाउट हार्ट हेल्थ, कि उनको लगता है कि लेटर स्टेजेस में आता है। सो इज इट अ ट्रू, और व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड दैट? ये जो है, इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन एंड इट इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट। तो यंग लोग जो हैं, द यंगर पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री, इफ यू सी, दे आर नॉट इम्यून टू हार्ट हेल्थ चैलेंजेस। बहुत सारे, द राइज इन सच केसेस अमंग यंग पीपल इन इंडिया इज लार्जली एट्रीब्यूटेड, जो हम लोग देख रहे हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें यंग पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बाय हार्ट हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस। उसका रीजन ये है, एक तो लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, क्योंकि लोग ज्यादा, मेट्रो सिटीज में अगर आप देखो, ट्रैवल टाइम इतना है कि आधे से ज्यादा टाइम तो बंदा घर के बाहर रहता है। So basically, it is largely attributed to unhealthy lifestyle, poor diets which are high in processed and fried foods, lack of physical activity, and increased stress from work. तो वर्क प्लेसेस में भी जो स्ट्रेस है, और अर्बन लिविंग, जो अर्बन लाइफस्टाइल है, उसके कारण भी बहुत इम्पैक्ट आ रहा है आपकी हार्ट हेल्थ पे। इसके अलावा वीकेंड पे जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी scary situation. If you are having a very unhealthy lifestyle, then you're uske over and above your smoking and drinking, that leads to a lot of the your risk factors get increased. Okay. इसके अलावा ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीजें जो है ना, ये अगर आप देखेंगे, ये हार्ट रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस को और बढ़ाते हैं। थर्ड, अगर आप देखो, जेनेटिक फैक्टर्स जो है, या एयर पोल्यूशन है, या इनएडिक्वेट अवेयरनेस है अगर, तो इट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम जाते हैं, फिट दिखते हैं, बट दे आर ऑल्सो एट रिस्क, राइट? सो आर दे हैविंग दैट, वो मे बी कुछ सप्लीमेंट्स ले रहे हो ऐसा कुछ नहीं, टू ऐसा मेक? कुछ नहीं। अभी क्या होता है, इसमें इम्प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं या एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं। क्या करते हैं लोग, दे विल मोस्टली टू मच फोकस ऑन मसल बिल्डिंग, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा मसल बिल्डिंग पे फोकस करते हो, तो आपके हार्ट पे भी मतलब वो आता है, प्रेशर आता है, हार्ट पे स्ट्रेस आता है। तो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, जो हम कहते हैं ना, कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। कार्डियो इज यस। फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। So there has to be a balance between cardio and strength training. लोग क्या करते हैं, they will only focus on strength training for muscle building, and they will forget about cardiovascular fitness. So that is something which इससे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो it is very important, you should have a balance of both these things, and
जो सिचुएशन है इसका ये है कि बैलेंस्ड अप्रोच डाइट के लिए, एक्सरसाइज के लिए, लाइफस्टाइल के लिए, अगर आपकी अच्छी बैलेंस्ड अप्रोच है तो आपका हेल्दी रहेगा हार्ट। All right. So, coming on to the next, that what about that myth that family history means heart health challenges are unavoidable? कि जैसे let's suppose कि आगे मतलब मेरे फादर को है, ठीक है, उनसे पहले मेरे दादाजी को था, so that is avoidable कि या मुझे होगा ही ऐसे? देखो जेनेटिक्स जो है ना, इट प्ले अ वेरी बिग रोल इन द हार्ट हेल्थ, बट दे डोंट कंट्रोल एवरीथिंग। ओके, सो इमेजिन योर हार्ट एज अ गार्डन एंड द सॉइल इज योर जीन्स, राइट? बट हाउ वेल द गार्डन ग्रोज डिपेंड ऑन आप उसकी केयर कैसे ले रहे हो। ठीक है, आप उसे पानी टाइम से दे रहे हो, आप उसे सनलाइट दे रहे हो कि नहीं, राइट? तो स्टेइंग एक्टिव, ईटिंग वेल, मैनेजिंग योर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, it can greatly reduce your risk for heart health challenges, okay, that already run in your family. In short, अगर आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस अच्छे हैं तो आप मतलब जेनेटिक्स को भी, आप जेनेटिक रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको भी आप सबसाइड कर सकते हो। ओके ओके। सो अब हमने सब कुछ कवर कर लिया, डाइट का भी, जितने भी ये मिसकंसेप्शंस थे वो भी हमने मिथ्स ब्रेक कर दिए। सो अब कमिंग ऑन टू दैट कि हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या कोई सप्लीमेंट्स आप ऐसा बताएं, और क्या सप्लीमेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं इन मेंटेनिंग दैट गुड हार्ट हेल्थ? तो देखो सप्लीमेंट्स जो हैं दे कैन बी वेरी हेल्पफुल, स्पेशली व्हेन इट्स टू डिफिकल्ट टू गेट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइट। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात करें, दे आर एक्सीलेंट फॉर रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन एंड प्रमोटिंग योर ओवरऑल हार्ट हेल्थ। कोएंजाइम क्यूटेन की अगर आप बात करें, वो सपोर्ट करता है आपकी हार्ट फंक्शन को। मैग्नीशियम जो है आपकी ईच एंड एवरी हार्ट बीट में वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। देन एडिशनली अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और आपकी बॉडी में जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उससे कम करते हैं, जिसके कारण आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहती है। बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल हार्ट वेलनेस। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बी कॉम्प्लेक्स जो आप वाइटामिन देखेंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर B3, B6, B12, फॉलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे विल मेंटेन योर होमोसिस्टीन लेवल्स। तो होमोसिस्टीन क्या होता है? इट्स लाइक अमाइनो एसिड, जिसकी अगर आपकी बॉडी में मात्रा बढ़ती है तो यू आर एट हायर रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट रिलेटेड हेल्थ चैलेंजेस। सो होमोसिस्टीन जो है बेसिकली अगर आप बहुत ज्यादा मीट या नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उससे भी होमोसिस्टीन बढ़ता है। तो B3, B6, B12 और फॉलिक एसिड जो है ये होमोसिस्टीन लेवल्स को बनाए रखता है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट vitamins फॉर मेंटेनिंग योर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस, स्पेशली विद द हार्ट हेल्थ। A lot of science involved, omega 3 fatty acids, coenzymes. So अगर कुछ आप मतलब कुछ ऐसा हमारे पास फॉर लाइफ में सप्लीमेंट हो जिनमें ये सब हो, कॉम्बिनेशन हो, सो कैन यू सजेस्ट दैट फॉर लाइफ सप्लीमेंट फॉर गुड हार्ट हेल्थ? यस, तो आकांक्षा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एक टारगेटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड दे आर टारगेटेड टू अ organ system, okay? For example, when you look at four life transfer factor cardio, it is for the cardiovascular health. So ये जो supplement है, it is amazing for managing, for reducing your blood pressure levels, ठीक है, फॉर मैनेज फॉर रिड्यूसिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी। तो ये जो दोनों चीजें हैं इनको मैनेज करता है। सो ट्रांसफर फैक्टर कार्डियो जो है, इट इज स्पेशली डिजाइन टू प्रमोट कार्डियोवास्कुलर वेलनेस। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, वी हैव कोएंजाइम Q10, वी हैव मैग्नीशियम जो कि सारी हार्ट बीट, आपकी एवरी हार्ट बीट में वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल है मैग्नीशियम। देन वी हैव एंटीऑक्सीडेंट्स इन इट। तो ये जो है बहुत ही यूनिक सप्लीमेंट है, स्पेशली डिजाइन फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है बिकॉज ट्रांसफर फैक्टर्स हैं इसमें, और साथ ही साथ इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है। तो हार्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोएंजाइम Q10 है, गिंको बिलोबा है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है टॉप टू बॉटम इन द बॉडी। Then we have garlic and we have red rice yeast, amazing antioxidants we have in this product. Then we also have monacolins in it, which inhibit the cholesterol production in the liver. So monacolins जो है, it is a wonderful ingredient that we have in this, and it is helpful in reducing the inhibition, यानी कि जो cholesterol production जो आपकी capacity होती है liver की, उसको ये prevent करता है, और you can say it can inhibit it. देन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके नॉर्मल रेंज में है तो उसको बनाए रखता है, अगर आपके ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने का या रिड्यूस करने का काम करता है।
और एडिशनली जैसा कि हमने बात करी कि ओमेगा फैटी एसिड्स की बात करी हमने, राइट, हमने हेल्दी सेल्स की बात करी, हेल्दी फैट्स की बात करी, तो वी ऑल्सो हैव एसेंशियल फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स, and World Health Organization also recognizes omega 3 and 6 fatty acids as essential nutrients, जो कि बहुत क्रूशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए, पर्टिकुलरली फॉर हार्ट हेल्थ, फॉर ब्रेन फंक्शन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. So, essential fatty acid complex जो है, it is a combination of omega 6 and 3 fatty acids from fish oil and from plant oil. So we have safflower oil, we have flaxseed oil, then we have borage oil. ये सबका combination है. So एक जो serving है, it is going to give you 1000 milligrams of fish oil per serving is there in it. तो ये जो है, it will support your heart health, आपका nervous system, additionally आपकी skin, respiratory health, immune function और brain health के लिए भी बहुत अच्छा है. तो या या सो आपने जैसे फॉर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर कार्डियो के बारे में बताया. सो व्हेन शुड वी स्टार्ट टेकिंग इट? जब हमारी बॉडी कुछ अलार्म दे रही है तब, या उससे पहले हम स्टार्ट करें? क्या रिकमेंडेड एज है इसके लिए, वो भी मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हम बहुत प्रोडक्ट्स डिस्कस करते हैं. तो कब राइट एज क्या है इसको okay, स्टार्ट so करने की? 18 plus में we can start, and then healthy individuals can also take it. Anyone who is already at a risk, मतलब genetically if you are prone to, genetically if you are at risk of heart related health challenges, then you can use it. Then if you have high cholesterol levels or high blood pressure levels, then you can also use it, right? So इससे क्या होगा, you are मतलब एकदम से आप बेसिक लेवल पे ही आप स्टार्ट कर दे रहे हो सप्लीमेंट, तो इट इज गोइंग टू गिव यू गुड इम्पैक्ट इन द बॉडी. ओके. सो ऑल्सो श्वेता, हमने एसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करी आकांक्षा, मैं एक पॉइंट और मेंशन करूंगी इसमें कि वी हैव स्टडीज ऑन दिस प्रोडक्ट एंड इट सेज दैट दिस प्रोडक्ट वाज कंपेयर्ड विद अदर लीडिंग ब्रांड्स इन द मार्केट, एंड इट वाज सीन दैट इट हैज मोर प्रोलैक्टिन्स, इट हैज मोर रिजॉल्वेंस एंड प्रोटेक्टिन्स. रिजॉल्वेंस और प्रोटेक्टिन्स बहुत ज्यादा है इसमें एज कम्पेयर टू अदर लीडिंग ब्रांड्स, जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं. एंड ये जो फॉर्मूला है फिश ऑयल और प्लांट ऑयल्स का, जिसको हम एसेंशियल फैटी एसिड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इट इज अल्ट्रा प्योर फॉर्मूला एंड इट मीट्स द स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर कंटामिनेंट्स एंड कंटेन्स मोर रिजॉल्वेंट्स एंड प्रोटेक्टेंट्स देन अदर लीडिंग ब्रांड्स. तो ये दो स्टडीज की गई हैं इस प्रोडक्ट पे कि जो इसमें कंटामिनेंट्स हैं वो लेस हैं एज कम्पेयर टू अदर लीडिंग ब्रांड्स एंड मोर ऑफ रिजॉल्वेंट्स एंड प्रोटेक्टेंट्स. ऑलराइट. सो जैसे अभी हमने श्वेता मिथ के बारे में किया था कि यंगर लोगों को लगता है कि हमें नहीं होगा, ये कि लेटर स्टेजेस पे होगा, या हम वी आर ऑल फिट एंड फाइन. सो मतलब लेट्स सपोज कि कोई एक यंग है, मतलब मेल है या फीमेल है. सो ही और शी थिंक्स कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन, और ऑल्दो उसका भी कोलेस्ट्रॉल सब कुछ ठीक है लेवल्स. सो देन ऑल्सो ही कैन टेक दिस फॉर लाइफ ट्रांसफर फैक्टर कार्डियो. यस, हेल्दी इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो टेक इट. जैसा कि मैंने कहा, जैसे अगर कोई रिस्क पे है, मान आपने लो अगर बोला आपको कि जेनेटिकली अगर आप प्रोन हो, राइट, तो आप ले सकते हो. आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी आप ले सकते हो. अगर आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स बढ़े हुए हैं, देन ऑल्सो यू कैन टेक इट. और ओवरऑल वैसे भी आपने बोला कि ये इम्यूनिटी ही इंक्रीज कर रहा है आपकी. इम्यूनिटी भी इंक्रीज करता है, वेरी गुड फॉर द कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सो कैन बी यूज्ड. ऑलराइट. सो श्वेता, बिफोर वी रैप अप, सो कुड यू शेयर सम की टेकअवेज फॉर आवर व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं? कुछ आप उनको क्रक्स बताना चाहेंगे अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ट? तो ओवरऑल जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, ईट अ बैलेंस्ड डाइट जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो, कार्ब्स कम हो. हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विथ सैलेड्स एंड वेजिटेबल्स. फाइबर रहना चाहिए फूड में बहुत ज्यादा. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिजिकली एक्टिव. 150 मिनट का पूरे पूरे वीक में 150 मिनट्स कह रहे हैं हम लोग, पूरे वीक में 150 मिनट्स is the basic that you can do for your health. And if you're doing a rigorous exercise, go for 75 minutes. Then you have to stay physically active and manage your stress levels. Very, very important. Life बहुत fast paced है. We all know too much of pollution, too much of stress, too much of workload. Very important कि आप अपने stress levels को कैसे maintain करते हो. जो भी आपको पसंद है, योगा पसंद है, गाने सुनना पसंद है, हॉबीज अच्छे लगते हैं, और सिंपली जस्ट चिलिंग एट होम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर ब्रेन, आपकी सैनिटी मेंटेन रहना बहुत जरूरी है, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना. अपार्ट फ्रॉम दिस, अवॉइड स्मोकिंग
and limit alcohol intake. In fact, अब तो WHO कह रहा है any amount of alcohol is dangerous for the health. So it is very important. Completely take off smoking and alcohol. Remember, while supplements can be very valuable addition to your routine, they should be paired with healthy lifestyle choices. कि अगर आप सोच रहे हो भाई मैं कैसी भी lifestyle रखूं और supplement लूं, no, it's not a good choice. Very important. Good routine, good lifestyle, balanced lifestyle, along with balanced meals and supplements. All of this together is like a amazing approach towards a great heart health. Absolutely. Thank you, Shweta, for sharing your valuable insights today. And to our viewers, remember, use heart for action. Just avoid that sedentary lifestyle, जो भी अभी हमने discuss किया. Avoid smoking, limit that alcohol intake, and have a focus on that balanced diet. And yes, of course, you can take these supplements, but yes, balanced diet should be there. So take steps to keep your heart healthy and make choices that benefit both of you and your loved ones. Thank you for joining us on this special World Heart Day session. Stay heart healthy. Thank you, Shweta. Thank you, you. viewers.